हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। और यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिया है, तो हमें बताना है वो कौन सा एक्सप्लेन करके बताना है क्या ये सही है या नहीं। की कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री का। अब हम जब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें दिया है गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, अगर हम इसका केस कंसिडर करेंगे गैलियम का, तो इसमें हो जाता है द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ गैलियम। सो जीए का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो हायर होता है एल्यूमिनियम से, एंड द रीजन इज ड्यू टू इनएबिलिटी, द रीजन इज ड्यू टू inability of D and F electron which have a screening effect, to compensate for the increase in nuclear charge. देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है बोरॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज B3+ आयन। तो जब हम ये सेकेंड वाला कंसिडर करेंगे, बोरॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज B3+ आयन, तो इसका रीजन होता है बोरॉन हैज स्मॉल साइज एंड द सम ऑफ delta H1 plus delta H2 plus delta H3 is very much high. So boron does not form B3+ ion, therefore it is give कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड देता है और B3+ आयन इसका एग्जिस्ट नहीं करता। देन हमारे पास है अल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6 3- आयन बट बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6 3- आयन। तो इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, थर्ड वाले में अल्यूमिनियम के पास जो होता है वो होता है वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स, वेकेंट 3D orbitals, and can expand its coordination number and form AlF6 3-, can expand the coordination number and forms AlF6 3-, F6 3-. On the other hand, boron does not have orbitals and cannot form BF6 3- and cannot expand its covalence beyond 4 and thus gives BF4 only. Whereas we can write down over here, boron doesn't have 3D orbitals, hence expansion of coordination number, or you can say CN, is not possible, and hence it can add to max form BF4 only. So this is the answer for the third one. The reason for the fourth one would be, if we check the fourth, we have is PbX2 is more stable than PbX4. Whether it is true or not, we need to see. This is actually true. Why? Because in this case, in the fourth one, that is the D1, due to inert pair effect. It is due to inert pair effect. +2 oxidation state is more stable. +2 OS, that means oxidation state more stable than a +4 oxidation state. Fifth, we have is Pb4+ acts as an oxidizing agent, but Sn2+ acts as a reducing agent. So this is a true statement, and the reason behind this is it is very much clear that Pb4+ gains 2 electron. So Pb+4 can gain 2 electron and change into Pb2+, which is more stable due to inert pair effect, more stable due to IPE, that means inert pair effect. And Sn2+, which we have, Sn2+ is less stable than Sn4+, hence it lose electron, and it becomes Sn4+. From Sn2+, it can become Sn4+, right? So therefore it can lose electron, and we can say that it can act as a
reducing agent now. It will act as a reducing agent. And hence, fourth is the reason for fourth is that then we have is electron gain enthalpy of chlorine is more negative as compared to fluorine. So when we talk about the electron gain enthalpy for fluorine, so in this case, what will happen over here? We have this sixth one in which electron gain enthalpy, the size of F atom, size of the fluorine atom which we have, F atom is very small, and incoming electron feels interelectronic repulsion, and electron gain enthalpy of F is less negative as compared to Cl, and therefore we can say the electron gain enthalpy of F जो होता है electron gain enthalpy F का वो less negative होता है compared to Cl यानी क्लोरीन से। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास है TlNO3 acts as an oxidizing agent. The reason behind this is basically what will happen, यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये है हमारा सेवेंथ स्टेटमेंट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आता है कम्स इनटू एक्शन। तो बेसिकली इसमें हो जाता क्या है, थुलियम जो है मोर स्टेबल होता है, थुलियम हमारा जो है वो मोर स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और देयरफॉर TlNO3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्राइस। इसमें क्या क्या मतलब है कि Tl जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है Tl। तो इसी के कारण क्या हो जाएगा इस केस में, ये जो चाहेगा +3 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, +3 से +1 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसका रिडक्शन होके दूसरों का क्या करा लेगा, ऑक्सीडेशन करा लेगा, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो हमारे पास है बाद में कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट। तो ये भी क्या है, इसमें क्या हो जाएगा एट्थ वाले में, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें जो है कार्बन एटम्स के पास टेंडेंसी होता है लिंक विथ अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, उसको कहते हैं हम कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन में, वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने ही एटम्स के साथ जुड़ जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इसमें चेन एंड रिंग्स फॉर्म हो जाता है, एंड दिस इज वी नो कैटिनेशन हमें बोलते हैं इसे। दिस इज बिकॉज CC बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या होते हैं, दे आर very strong, and down the group the size increases and electronegativity decreases, thereby the tendency to show catenation decreases। तो जब हम down the group जाएंगे, कैटिनेशन का जो प्रॉपर्टी है, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कैटिनेशन का जो प्रॉपर्टी है डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, and thereby the tendency to show catenation decreases। this can be clearly seen from the bond enthalpy value। जब हम कंपेयर करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू क्या होता है, इसमें कार्बन का है सबसे सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और विच इज नियरली इक्विवेलेंट टू टिन। सो लेड डज नॉट शो कैटिनेशन एट ऑल। सो पीबी जो है कैटिनेशन डजंट शो। तो हमारे पास नेक्स्ट है, वाई डज द एलिमेंट सिलिकॉन नॉट फॉर्म अ ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर वेयर कार्बन डज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि सिलिकॉन जो है हमारा ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता है, बट सिलिकॉन हमारा जो कार्बन है वो जरूर फॉर्म करता है। और इसका रीजन ये होता है कि हमें पता है इन ग्राफाइट, हम ये बात कर रहे हैं आखिर वाले की जो है 9। तो ग्राफाइट में क्या हो जाता है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp3, एंड कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल p pi बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन में मल्टीपल p pi बॉन्ड्स हो जाएंगे ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 14। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN वैल्यू यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू
इन होल ग्रुप 15। तो पूरे ही ग्रुप 14 में क्या हो जाता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है वो होता है कार्बन का, और ड्यू टू इसका स्मॉल साइज उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल पी पाई बॉन्ड्स बना लेगा। एंड सिलिकन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, तो हम बोलेंगे सिलिकन ड्यू टू लार्ज साइज and less electronegativity, less En value, cannot form multiple bonds, multiple bonds. Thus, we say silicon cannot form a graphite-like structure. तो ये हो जाएगा इसका रीजन. Hope you understood it well. Best of luck.